Hello my dear students, today we are going to learn chapter number 13 from grade 8 science and the name of the chapter is sound. So what we have to learn in this chapter? So first of all we have to know that what is sound means. So sound is nothing else but a form of energy produced by vibration. That means sound is a thing which is generated by vibrating any material. Now as we know that we hear a wide variety of sound in our surrounding, because we know that in our day to day life we'll listen so many types of sound. Sound is produced by a vibrating body. As we know that how sound will produced, if anybody or else any body getting vibrated, then sound is produced. So what is vibration? So vibration is to and fro, or else you can say vibration is back and forth movement of any object. You can write to and fro movement also, and you can write back and forth movement also. So in a simple term, vibration is back and forth movement of any object, and after that vibration sound will produce. Here I will give you an example that if you strike a school bell, it vibrates and produces sound. Here is the image of the school bell. As we know that when the peon rings the bell and the bell is getting vibrated and then sound is produced. At the same way, if you pluck a stretch rubber band, it vibrates and produced sound. As we know that कि जब हम रबर बैंड को ऐसे दोनों हाथ से खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, it produced sound because उनके अंदर भी vibration हो रहा है. At the same, the next example, drum. When you have beat the drum, if you beat a drum, it stretch membrane and vibrates and produce sound. कि भाई जब आप ड्रम को बजा रहे हो, ड्रम को बीट कर रहे हो, the drum is getting vibrated and then sound produced. At the same way, if you are talking about bugle, the air column in between the bugle will vibrated and it produced sound. So this is the way how sound produce. So the simple logic behind the sound production, that is vibration, and vibration is back and forth movement of object. So this is all about the production of sound. Here are some examples of musical instrument that we usually seen, and from this we can listen music. So here are the music instrument, that is harmonium, flute, sitar, tabla. Someone likes this, so they'll play, and after playing this music will generate. Now how sound produced by humans, कि अगर हम humans की बात कर ले तो humans के अंदर sound किस तरीके से produce होता है, because we all can speak. सही है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं, साउंड हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से जनरेट होता है. सो इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और एल्स यू कैन से लेरियांस. कि अगर ह्यूमंस की बात कर लो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज जो साउंड को प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर वॉइस बॉक्स और एल्स यू कैन से योर वोकल कॉर्ड. आपकी जो वॉइस, जहां से आपका वॉइस निकलता है, दैट इज अ वॉइस कॉर्ड. कभी ना आप अपनी नेक पे ऐसे हाथ रखना, नेक पे हाथ रखोगे ना तो आपको वाइब्रेशन जैसा फील होगा. जब आप बोल रहे हो तब आप ट्राई करना नेक पे हाथ रख के, तो वहां पे क्या होगा, आपको वाइब्रेशन फील होगा. सो द प्लेस एट वेयर यू कैन फील वाइब्रेशन, दैट इज योर वॉइस बॉक्स. एंड वेयर इट इज लोकेटेड, सो इट इज अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप. क्या आपका जो विंड पाइप है उसके अपर पार्ट में होता है. विंड पाइप चालू होने से ऊपर की साइड पे आपका वॉइस बॉक्स और एल्स वोकल कॉर्ड located होता है. Now two vocal cords are stretched across the voice box leaving a narrow sheet. कि अगर आप अपने वॉइस बॉक्स की बात कर लो तो वॉइस बॉक्स किस तरीके से डिजाइन होता है. यहाँ पे आपको मैंने एक इमेज दिखाई है. मैंने आपको बोला ना कि आपके जो विंड पाइप है उसके ऊपर वोकल कॉर्ड होगा. सो दिस वन इज योर विंड पाइप और उसके ऊपर की साइड पे आपका वॉइस बॉक्स होगा. एंड इन दैट वॉइस बॉक्स टू वोकल कॉर्ड्स आर देयर. कि ये आपका जो वॉइस बॉक्स है पूरा, उसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती है. दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2. की ये दो वोकल कॉर्ड होती है उनके बीच में, और एक नेरो स्लीट होती है उनके बीच में, बहुत ही पतली सी जगह होती है. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. कि अब क्या होगा कि जब लंग्स में से एयर
व्हेन अ लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, कि भाई ये जो बीच वाली स्लिट है उसमें से जब एयर लंग्स के थ्रू बाहर आएगी, एट दैट टाइम इट विल वाइब्रेट एंड इट प्रोड्यूस साउंड. सो दिस इज द वे इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ना प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कि भाई साउंड जनरेट कैसे होता है वो हमने समझ लिया, बट हाउ आफ्टर साउंड विल प्रोपोगेट, कि जनरेट हो गया उसके बाद प्रोपोगेट कैसे होगा. प्रोपोगेट इन द सेंस कि स्प्रेड कैसे होगा. बोल तो दिया बट दूसरे को सुनाई किस तरीके से देगा, दैट इज अ प्रोपोगेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, कि अगर साउंड को प्रोपोगेट होना है, साउंड को स्प्रेड होना है, इट विल नीड मीडियम, कि उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है. विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर सकता. एट वे कि अगर वैक्यूम हुई, आसपास में एयर का मीडियम नहीं हुआ, वाटर का मीडियम नहीं हुआ, तो वो ट्रैवल नहीं करेगा. और एल्स यू कैन से वैक्यूम हुई तो वो ट्रैवल नहीं करेगा. नाउ साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, कि भाई वो साउंड का मीडियम हो देन ऑल्सो साउंड कैन ट्रैवल. इफ देयर इज अ लिक्विड मीडियम देन ऑल्सो साउंड कैन ट्रैवल, एंड इफ देयर इज अ गैसियस मीडियम साउंड ऑल्सो ट्रैवल्स. नाउ साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कि अगर वैक्यूम होगा देन साउंड विल नॉट ट्रैवल. अब एग्जाम्पल लेके समझना हो तो आप बेस्ट एग्जाम्पल, बच्चे बहुत ये ट्राई करते हैं कि भाई 2 कप्स लेते हैं और फिर उनके बीच में एक थ्रेड रख देते हैं और फिर उन थ्रेड से क्या करते हैं, एक बच्चा बोलता है और दूसरा बच्चा कान लगा के सुनता है. तो एट दिस टाइप साउंड प्रोपोगेट होता है. सो दिस वन इज अ प्रोपोगेशन बाय थ्रेड, की थ्रेड की हेल्प से प्रोपोगेट हुआ, स्प्रेड हुआ. तो ये थ्रेड क्या हुआ, सॉलिड हुआ. सो वी कैन से लाइक अ टेलीफोन, कि भाई अ साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ सॉलिड थ्रेड ऑफ अ कैन टेलीफोन, कि भाई क्या होगा कि एक थ्रेड की हेल्प से, जो सॉलिड है उस थ्रेड की हेल्प से आप एक टेलीफोन जैसा जनरेट कर सकते हो. नाउ अ वेल लिसन टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन वाटर टू लोकेट इट्स प्रे, कि भाई वाटर के अंदर जो वेल्स रहती है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है साउंड को, कि भाई वो साउंड को सुन के ही अपने प्रे को आइडेंटिफाई करती है. दैट मीन्स दैट इज अ प्रूफ दैट इन लिक्विड ऑल्सो साउंड कैन ट्रैवल. And we are able to listen to sound because sound travels in air, or as we know that we all can listen the sound because of gaseous environment only. Then so it is also proof that sound traveled in gaseous medium, or else you can say sound is travel in air also. Then now human ears, or else you can say you have to learn how we hear sound through our ईयर्स, कि भाई हम साउंड किस तरीके से सुन पाते हैं, अपनी आइज के थ्रू हम किस तरीके से साउंड सुन पाते हैं. सो साउंड एंटर्स द ईयर थ्रू अ ईयर कैनल. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी देन वी कैन लिसन बाय आवर ईयर्स, एंड इन दैट ईयर वी कैन लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द प्रोसेस दैट साउंड एंटर्स इन ईयर थ्रू अ ईयर कैनल, कि भाई हमारे कानों तक जब आवाज पहुंचेगी तो हमारी कान से अंदर जाके वो आवाज कहाँ पे जाएगी, हमारी ईयर कैनल के अंदर. जस्ट शो माई रेड पॉइंटर, कि भाई क्या होगा, आवाज यहाँ तक पहुंची और फिर यहाँ से क्या होगी, आवाज अंदर की साइड जाएगी. नाउ इट मेक्स द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, कि अब ये क्या होगा कि साउंड यहाँ से अंदर जाएगी और अंदर जाते ही वहां पे क्या होगा, ईयर ड्रम होगा. जैसे आप बाहर ड्रम बजाते हो वैसा सेम ड्रम हमारे कान के अंदर भी होता है, छोटा सा मेम्ब्रेन होता है. सो ये साउंड क्या करेगा, जाके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा. नाउ एज वी नो वाइब्रेशन होगा तो साउंड का जनरेशन होगा. सो एज एंड व्हेन द ईयर ड्रम्स वाइब्रेट इट प्रोड्यूस साउंड. सो ईयर ड्रम्स सेंड द वाइब्रेशन टू द ईयर इनर ईयर, की ईयर ड्रम पे जो वाइब्रेशन हुआ इस वाइब्रेशन को ईयर ड्रम क्या करेगा, आगे पहुंचाएगा और फिर वो वाइब्रेशन कहाँ पे जाएगा, इनर ईयर के अंदर जाएगा. और फिर ये जो इनर ईयर्स है यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती है, इन नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल कहाँ पे जाएंगे, आपके ब्रेन के थ्रू जाएंगे और ब्रेन में जाके फिर वो आपका ब्रेन क्या करेगा, उस साउंड को आइडेंटिफाई करेगा और इस तरीके से आप साउंड सुन सकते हो. देन समझ में आया. सो अगर आप ईयर की स्ट्रक्चर्स देख लो तो ये जो बाहर का पोर्शन जो आपको दिखता है दैट इज योर आउटर ईयर. फिर ये जो पूरा ईयर कैनल वाला स्ट्रक्चर है, ईयर ड्रम वाला एरिया है, दैट वन इज योर मिडल ईयर. और एकदम अंदर का एरिया जो अंदर की साइड है दैट इज योर inner ear. So how can we listen sound? First of all, sound will reach at the outer ear. From that outer ear, sound will pass in ear canal and then it vibrate the eardrums.
After getting the vibration of eardrum, the vibration goes on inner ear, and that inner ear will give a signal to the brain, and brain will identify sound. Then here is a structure of human ear कि how human ear works, कि ये inner ear का structure है कि इस तरीके से inner ear work करता है. Now the outer ear called पिना कलेक्ट्स द साउंड वेव, की ये जो आउटर ईयर है, जो हमने आउटर ईयर बोला, जो हम बाहर देखते हैं सारे ह्यूमंस में, दैट इज नोन एज पिना. और यहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव्स कलेक्ट होंगे. नाउ द साउंड वेव्स पासेस थ्रू द इनर ईयर टू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम, कि यहाँ से ये जो साउंड था वो पास होके कहाँ पे पहुंचेगा, इट विल रीच इन ईयर ड्रम, कि भाई ईयर ड्रम पे साउंड पहुंचेगा. अब ईयर ड्रम के बाद वाली जो इमेज है बॉक्स करके, वहाँ यहाँ पे आपको जूम करके दिखाई गई है कि भाई यहाँ पे ईयर ड्रम पे साउंड पहुंच गया. इसके बाद क्या होगा, द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स ऑफ मिडल ईयर कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप. कि अब क्या होगा, ये जो ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने के बाद वो किसको वाइब्रेट करेगा, मिडल ईयर को वाइब्रेट करेगा. मिडल ईयर के अंदर 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, एंड देन नेम आर हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, की इन तीनों को वो वाइब्रेट करेंगे. पहले इनर ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, ईयर ड्रम के बाद मिडल ईयर वाइब्रेट होगा, और मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, की ये 3 वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ से सिग्नल इनर ईयर के अंदर पास होगा. अब इनर ईयर में क्या है, इन द इनर ईयर द साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड कलेक्टेड एंड सेंड टू द ब्रेन. कि अब क्या होगा, इनर ईयर के अंदर सिग्नल्स पहुंच जाएंगे, वॉइस पहुंच जाएगा, तो इनर ईयर क्या करेंगे, उस वॉइस को सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, और वो जो सिग्नल्स थे वो सिग्नल्स किसको भेजे जाएंगे, दैट सिग्नल विल सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व्स. क्या आपके ईयर्स के अंदर जो ऑडिटरी नर्व्स होती है, जो सुनने का काम करती है, उनके थ्रू वो सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचाए जाएंगे, एंड देन ब्रेन विल इंटरप्रेट द सिग्नल्स एज साउंड. ब्रेन क्या करेगा, उस सिग्नल्स को साउंड के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेगा, और तब हमें पता चलेगा कि हम क्या सुन रहे हैं. तो सोच लो ये काम कितना जल्दी होता होगा, दैट वन इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि सामने वाला बोलता है और एट अ टाइम आप सुन लेते हो, तो आपका जो ईयर है उसका फंक्शनिंग माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होता है. सो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड अ वर्क दैट हाउ ईयर कैन लिसन. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.